Vedji and we go long way, before coming to this country. Anyway, Swamiji, I was very much delighted to see this great program here by the children, especially seeing children attired in the dress of Swami Vivekananda was very inspiring. I saw the same kind of program, little bit less dominating in Ennis town, Boston, about a few months ago. Swami Vivekananda came to this country and he made the first speech, not in Chicago, on 26th August 1893. He spoke in a small church in north of Boston. I was there when they had celebration of his visit. Celebration means they were celebrating his visit. They were about place for 50 people only. And he was invited by the professor who was going to take his credentials to this Parliament religions. And there he said many good things in a small speech, with a small crowd, that up there is Lord, and he has for me a job to do. And he did it. Now, he did something which is unique. Vivekananda's teaching you have been hearing, listening, reading. People like me and Vedji, I think we read it when we were in the school. All the 7, 8 volumes. That's how we were inspired. But what I'm going to say today, that my association with one person over the years is such that I can say that what Vivekananda dreamt, what he thought, what he gave to the world, that person is giving by action. He is Vivekananda in action. That is Baba Ramdev Ji. As most of you know, I do not praise people for nothing. I'm not praising. I'm saying which is truth. Vivekananda Ji, just before his death, at the age of 39, he was thinking about India's future. And I think he must have thought that there will be some person like him who will carry the torch forward. And he is doing it. This is a great privilege to have his company. I was fortunate that for the last 3 days I am with him. And every minute I see him, he is a source of inspiration. He smiles with a winning gesture. He talks with a captivating voice and great sympathy and love for everybody. But at the same time, when he talks about the enemies of India, he's like Vajra. His love for India, his Rashtra Bhakti is undiminished at all the levels. He has done a lot of yoga work. People have been following him, his great teaching. He has done a lot of spiritual things. Agreed. But he says, my Desh, my Rashtra comes first. Why he says so? Because he is a yogi and a practical yogi. A yogi with a mission. He thinks that if India is not saved, at the critical juncture we are in trouble.
Everybody loves him wherever he goes. He has the capacity of winning people. But Babaji, everybody loves you too. They not only respect you, they love you. I have seen that love in the people in Chicago, where we were there last night. I have seen their love in Houston. Wherever I go, I see the love in their mind, their respect. They think that they have achieved something in life by just touching his feet. And now, I have a few minutes. NRIs are great, as you always say. They are great doers, they are great achievers, they have done wonderful things in life. But they are distressed at this time. They are very disturbed. They are disturbed because they all want India to be great, physically, spiritually, in every way. And they don't see that. They see India is going down the hill. They cannot tell their kids to be proud of India when they know every other day there's a rape, other day there's a scam after scam. India has become a republic of scams. It's shameful. When they saw anybody can cut our soldier's head and take away into Pakistan, China is disturbing us. There's internal problems, there are external problems. Nobody is caring except taking money, making money, nothing. So the idealism about India is going down the drain. We are concerned. NRIs are concerned. People all over the world are concerned. But we know it, that we have a ray of hope. Babaji is there. Babaji is there. He has made total commitment to see that all these evils are gone. Puja Swamiji, who came here earlier, he talked about Paritranaya Sadhunam, Vinashaya cha Duskritam. This is what Swamiji is for. Vinashaya to Duskritam. He would see that India is being messed up by people who do not love India. They hate sadhus. These people in power, they hate these clothes. They say this is saffron terror. That's what their psychology is, their mind is. Unfortunately, we have them as our rulers. So therefore, there has to be major effort from all sides to see that India is properly treated now. So therefore, we as NRIs, we people living abroad, we have to figure out how to strengthen the hands of this great soldier for India. He is not doing anything for himself. He is Swami. He doesn't want any position, no power, nothing. But his heart cries out when he sees what is going on in India. I hope we all are there to help him in his efforts to face those challenges. And I'm sure we will, because we have done it all the times. Most of us who are elect, except the children, they know that they have done what they have to do here. Let us do something for India. Let us do something for India. Let us give that bit push so that this nuisance known as government is down the hill, once for all. So Swamiji, I don't want to talk about his history. Everybody knows his history. I can talk about him for days and days, but he's our only hope. Let us do it. Pardon? Now I hereby request Baba Ramdev ji to come and give his message to us.
ओम प्रणाम, बैठ। चलो मैं एक साथ बोल देता हूं तो सबको सुविधा रहेगी जय बोलने में। लेकिन जय बोलने के लिए थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा। भूख तो नहीं लगी है ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोले बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, ऋषि भूमि भारत माता की, कर्म भूमि अमेरिका की। इसकी भी जय बोलनी पड़ेगी भाई, इसने भी बहुत कुछ दिया है। बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे। एक प्रार्थना बोलते हैं जो हम बचपन से बोलते आए, जहां से हमें प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला। मेरे साथ बोलेंगे सब, ताली बजाते हुए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, करे ताव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो, करे ताव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन निज आन मान मर्यादा का, निज प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे। आप तो इतना अच्छा गाते हैं, ऐसा लगता है मैं भारत में ही आ गया हूं। निज आन मान मर्यादा का, निज प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। प्रभु जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में बलिदान उसी पर हो जावे। बलिदान वह शक्ति हमें दो दया निधे। वह शक्ति हमें दो, करताव्य मार्ग पर डट जावे। करताव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन। तो आप इस बात के लिए तैयार हैं कि देश के लिए जिएंगे, और यदि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, जैसे अभी बच्चे कह रहे थे ना लक्ष्मीबाई, मैं अपने अंतिम श्वास तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगी, तो आप अपनी मातृभूमि के लिए गौरव रखते हैं? पक्का? हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ। जो जो तैयार है वो बोलेंगे, और जो नहीं तैयार वो मुंह नहीं खोलेंगे। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों। ये महामानव को याद कर रहे हैं। 1863 में जन्मा वो महापुरुष जो हमारी भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति का गौरव है, जो देश के लिए जिया और देश के लिए सबको जीने के लिए प्रेरित किया। उत्तिष्ठता जागृत। सब मेरे साथ बोलेंगे, उत्तिष्ठता, उत्तिष्ठता। तो आप स्वयं विवेकानंद बनने के लिए तैयार हैं? अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो,
अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हाहार। हो जाओ तैयार साथियों, ओ हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हाथ उठा के ओ हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथ, हो जाओ तैयार। बोले स्वामी विवेकानंद की, महानायक की, भारत के उस युग प्रणेता की। न्यू जर्सी में नया अनुभव हो रहा है। आपके भीतर का ओज, तेज, पराक्रम, शौर्य बहुत कुछ कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विदेश की धरती पर यूएसए में यह हिंदू स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा आयोजित उस महापुरुष की सार्ध शताब्दी जयंती पर यह कार्यक्रम बहुत कुछ कहता है। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता तो पूरे विश्व में हिंदू गौरव के साथ खड़ा न होता। डॉक्टर हेडगेवार जी, श्रद्धेय गुरु जी गोलवलकर जी, रज्जू भैया जी से लेकर के एक बहुत पावनी परंपरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालकों की। महात्मा जैसा जिनका जीवन, ऐसा आदरणीय श्री सुदर्शन जी, और वर्तमान में संघ का नेतृत्व एक सिंह की तरह करने वाले आदरणीय भागवत जी। बहुत सी चुनौतियों का दौर और उसमें संघ को एक सिंह की तरह जो साहसपूर्ण निर्णय लेने चाहिए थे, वो निर्णय आदरणीय भागवत जी ने लिए। इसके लिए उनका भी मैं अभिनंदन करता। मैं धर्म और योग के बारे में बात करूंगा, लेकिन जब देश ही नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। और योग कौन करेगा? चारों तरफ तो भोग होगा, योग नहीं युद्ध होगा, और वो हो रहा है। इसलिए थोड़ी सी देर कुछ बातें युग धर्म की, राष्ट्र धर्म की करके फिर धर्म और योग धर्म पर आऊंगा। हमें अपने भारत पर गर्व है, अपने हिंदू होने पर गर्व है। अमेरिका के सिविलाइजेशन के 500 वर्ष हुए और अमेरिका ने भौतिक समृद्धि का शिखर छुआ है। हम सब उसके साक्षी हैं। और अमेरिका की समृद्धि में भारतीयों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। पूरे भारत में 125 करोड़ लोगों का देश, और उसमें जितना टैक्स कलेक्शन होता है, कहां 125 करोड़ और कहां हमारे अमेरिका के ये प्रवासी भारतीय करीब 25 लाख की संख्या मात्र। 25 लाख तो हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में लोग बसते हैं और शायद एक दिन में पैदा भी हो जाते हैं। लेकिन कि 25 लाख की आबादी, 125 करोड़ लोग जितना टैक्स पे करते हैं, उसका 1/3 करीब 6 लाख करोड़ रुपए आप लोग अमेरिका गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यहां यूएस नंबर 1 हुआ करते थे पर कैपिटा इनकम में, आज
उन्नत व्यक्ति के, समृद्धि के इस मूल्यांकन में भी आपने जो जूइस पूरी दुनिया में अपने बुद्धि बल और अपने धन बल के आधार पर अपने फिर उससे राज बल अर्जित कर लिया, उससे राज करते हैं, उन जूइसों को भी आप एनआरआईओ ने पीछे छोड़ दिया है। आपको बधाई है, अभिनंदन है, आप में बहुत ताकत। बस इसमें पॉलिटिकल विल आपको और अर्जित करनी है। जूइस लोग आपसे कम है आर्थिक ताकत में, लेकिन वो अमेरिका की राजनीति किधर जाएगी इसको तय करते हैं। तो आप अब दो काम एक साथ करेंगे। एक तो भारत की राजनीति से आसुरी प्रवृत्ति का, रावणों और कंसों का, ताड़काओं और पूतनाओं का साम्राज्य खत्म करके वहां पर भी सत्ता के ऊपर एक नरेंद्र का राज्य हो, जो नरों में श्रेष्ठ हो। ये तो नरेंद्र की हम सार्ध शताब्दी मना रहे हैं ना। नरेंद्र विवेकानंद हो जाते हैं तो नरेंद्र सिंहासन पर आसीन भी हो जाते हैं, होंगे। और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय हमारी सन्यास परंपरा के गौरव, और जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई आदि शंकराचार्य बोल रहा है। हमारी संस्कृति की, संस्कृत की वो पावनी परंपरा। वो कह रहे थे हमने पहले किसी को छेड़ा नहीं, और यदि किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ा नहीं। ये मैं हिंदी करके बता रहा। स्वामी मोदयाः संस्कृतं वदति स्म, अहमपि वक्तुम् अर्हामि, परं यदि अहं वदिष्यामि भवन्तः सर्वं न अवगमिष्यन्ति, तदर्थम अहम राष्ट्रभाषां वदामि। तो उन्होंने जो ठेठ संस्कृत में बोला, मैं ठेठ हिंदी में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने किसी को छेड़ा नहीं, और जिसने हमको छेड़ा उसको छोड़ा नहीं। लेकिन आज के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, उनको सब छेड़ते रहते हैं। वो सब छेड़ते रहते हैं, देशी तो छेड़ते हैं, विदेशी भी छेड़ती है, और वो बेचारे कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान का वो नवाज शरीफ, वो भी बदमाश बन गया। उसने कह दिया एक देहाती औरत की तरह मेरी चुगली करने ओबामा के पास आ गए। आज पूरे वर्ल्ड में प्रधानमंत्री को बहनों की लुगड़ी उड़ा के और उसका फेसबुक और ट्विटर पर फोटो डाला हुआ है। क्यों? इसलिए ये पार्टी अपने आप ही, अपने कर्मों से ही, अपने कुकर्मों से ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसको नष्ट करने के लिए हमको काम नहीं करना, हमें तो भारत को विश्व के आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए काम करना है। इसलिए हमारा टारगेट वो पार्टी नहीं है। हमारा टारगेट है, जैसा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यहां ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, ऐसे हम सैकड़ों ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड हिंदुस्तान में खड़े कर दे। ये हमें काम करना है। आज पूरी दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियों में एक भी नंबर नहीं आता है हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का। जिस भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान की दीक्षा दी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरं पृथिव्यां सर्वमानवाः। हमें भारत पर इसलिए गर्व है कि भारत ने पूरी दुनिया को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम दिया। मैंने कहा 500 सालों की संस्कृति, सभ्यता और समृद्धि आप अमेरिका में देखें। 500 साल, 1400 सालों में धरती में तेल मिल गया, नहीं तो धूल उड़ा करती थी वो गल्फ कंट्रीज। सऊदी अरबिया कहां खड़ा हो गया, वहां गगनभेदी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। 2000 सालों में यूरोप ने आविष्कारों, अनुसंधानों, ज्ञान बल और सैन्य बल के आधार पर नहीं, छल बल के आधार पर
यद्यपि पूरी दुनिया में लूट की, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। हम सलाम करते हैं उसके 2000 साल पुराने संघर्ष को भी। लेकिन अमेरिका के 500 वर्षों के संघर्ष और समृद्धि को, यहां की संस्कृति और सभ्यता को, मिडिल ईस्ट के 1400 और यूरोप के 2000 वर्षों को सलाम करने से पहले हम अपनी 1,96,08,53,114 वर्ष पुरानी संस्कृति पर अभिमान रखते हैं, स्वाभिमान रखते हैं। यह हर एक भारतीय के हृदय में होना चाहिए। पूरी दुनिया को शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम ये भारत की देन है। पूरे वर्ल्ड को एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हेल्थ सिस्टम 200 साल पुरानी है एलोपैथी। 200 साल पहले तो बहुत दूर की बात है, अमेरिका में 100 साल पहले किसी को बुखार हो जाता था तो लोग खून निकालने लग जाते थे कि इसके शायद कोई गर्मी होगी, खून निकालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। इनको बुखार का ट्रीटमेंट नहीं पता था, फीवर का, 100 साल पहले तक। 200 साल पुराना मॉडर्न मेडिकल साइंस, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारा चरक शुद्ध धन्वंतरी का आयुर्वेद, पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम भारत की देन है। पूरी दुनिया को जुडिशियल सिस्टम ये भारत की देन है, न्याय व्यवस्था। पूरी दुनिया को पॉलिटिकल सिस्टम ये भारत की देन है। पूरी दुनिया में फैमिली सिस्टम, यहां तो फैमिली है ही नहीं। किसी की 60-70 साल की आयु और बोलो आपकी वाइफ कितनी, बोले एक, बोले बस एक ही। यहां तो आधुनिकता और आजादी के नाम पर लिविंग रिलेशनशिप, फ्री सेक्स, होमोसेक्सुअलिटी, इसका जब मैंने भारत में विरोध किया तो कितने जो होमोसेक्सुअल थे मेरे ऊपर टूट पड़े। बोले बाबा जी आपको क्या आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। मैंने कहा तेरा बापू शादी नहीं करता तो निकम्बे तू पैदा ही नहीं होता। होमोसेक्सुअलिटी, फ्री सेक्स। पत्रकारों ने एक बार मुझे घेर लिया, मुझे एक बड़े बड़े फंक्शनों में बुला देते, मैं चला गया। मैंने कहा कहां भी बुलाओ, जहां बुलाओ वहीं ठोकेंगे। तो वहां फंक्शन रख दिया, देश का बहुत बड़ा चैनल है, उसका नाम आज तक, मुझे बुला लिया। अब मेरे दाएं बाएं सब फ्री सेक्स वाले बैठे हुए, मेरे से बोले बाबा जी आप इसका अपोजिशन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो करूंगा, मैं तो संयम और सदाचार की ही बात करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुराचार का देश नहीं, भ्रष्टाचार और बलात्कार का देश नहीं, ये सदाचार का ही देश है, मर्यादा का देश है। इसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं। बोले बाबा जी आपको फ्री सेक्स से आपत्ति क्या है? मैंने कहा मुझे तो आपत्ति नहीं, शायद आपके बच्चों को जरूर आपत्ति होगी। मैंने कहा तुम यदि फ्री सेक्स की बात करोगे तो तुम्हारी औलाद को यह भी नहीं पता लगेगा ये पैदा किससे हुई है। समझे ही नहीं। बोले बाबा जी हम करें तो आपको दिक्कत क्या है? तो उसमें एक बड़ा पत्रकार था, अब उसका नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा भैया इसकी वाइफ आई हुई है क्या? वो खड़ा कर दिया मैंने, वो बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारा पति फ्री सेक्स करे? बोले कभी नहीं। सारे हॉल में तालियां पिट गई, सबका मुंह बंद हो गया। आधुनिकता के नाम पर क्या क्या पशुता चल रही है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था एक दिन कि हमें आधुनिकता चाहिए लेकिन ये भारतीयता के साथ। हम आधुनिकता की समृद्धि के विरोधी नहीं, हमने तो घोषणा की है दरिद्रता को धर्म नहीं माना। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, यह है धर्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म। भौतिक समृद्धि का शिखर हमारे जीवन में, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक शांति की पराकाष्ठा। प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा, वेल्थ इतनी ज्यादा हो हमारे पास में कि हम सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली ला सकें, और भीतर से पूर्ण तृप्ति, भीतर की सभी पराधीनताओं, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, अपूर्णताओं से मुक्ति। ये धर्म। धर्म, इसके बारे में मैं वापस आता हूं, लेकिन थोड़ी सी देश की बात पूरी कर देता हूं। मैं कह रहा था भारत देश
उसके ऊपर गौरव होना चाहिए सबको कि सारी दुनिया को सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता, सिविलाइजेशन क्या है, एनलाइटमेंट क्या है, पूरी दुनिया में इतिहास के नाम पर, विकास के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर, ज्ञान परंपरा के नाम पर झूठ बोला जाता है भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत के लोगों में आत्मग्लानि पैदा करने के लिए। मेरे से बोलो बाबा व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? मैंने कहा सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, उसका भारतीयकरण करना पड़ेगा। आप लोगों को अब अगला काम यहां पर भी करना है। आप लोग यदि 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो यह भी कहना टैक्स बुक्स में यहां चेंज करें, भारत के बारे में सही पढ़ाएं। यह काम आपको करना पड़ेगा। सारे 25 लाख भारतीयों को राइटिंग में लेटर लिखना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए जीते हैं, और मरना पड़े तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे खून में यही शहादत है। लेकिन आप हिंदू धर्म के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, अनजस्टिस नहीं। क्या हो रहा है? हिंदू धर्म को रिलीजन मान ही नहीं रहे। अरे रिलीजन से तो ऊपर की, रिलीजन तो बहुत छोटी चीज है। हिंदू धर्म तो धर्म है, ये जो रिलीजन है ये तो पंथ है। उसको क्या करें? ये तो मैथोलॉजी। यहां अल्पसंख्यकों को लाभ जो मिलते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, हमको लाभ नहीं पाना, लेकिन हमारी व्याख्या गलत नहीं करोगे। हमारा सम्मान उसको हमें बरकरार रखना है। मैं कह रहा था सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, मेरे साथ बोलेंगे ये सब, सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा कण्वंतो विश्वमार्यम अपघ्नंतो अरावणा। यह हमारी संस्कृति कैसी? सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, दुनिया की सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता भारत ने दी, और दुनिया में पहला मानव का आविर्भाव भी भारत की भूमि से ही हुआ। ये असली जीन है ना मनुष्य का, ये भी बाद में क्रॉस ब्रीडिंग होते ये बाकी दुनिया में पैदा हुई है, कहीं इधर उधर फैली है, अलग अलग संस्कृतियां सभ्यताएं। ओरिजिनल जीन मनुष्य का और ऋषियों का रॉयल ब्लड है, और ईश्वरीय जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है। ऐसे तो सारा शरीर, ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का ही है, लेकिन इस शरीर में सबसे पवित्र क्या है? मस्तिष्क। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति तामसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नहीं जाने नथ सदृशम पवित्रम युत। जैसे शरीर में, पिंड में मस्तिष्क का स्थान है, ऐसे ही ब्रह्मांड में भारत का स्थान है। इसलिए सभी देवात्माएं वही पैदा होती हैं। ऐसे उस पुण्य भूमि पर सबको गौरव होना चाहिए और उसके बारे में सबको चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें उस भारत से जुड़ी है। माना कि आप सब बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं और शक्तिशाली बनना है। मैं तो कहता हूं हेल्थ में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, वेल्थ में हमें नंबर 1 ही बनना है। दूसरे दर्जे की जिंदगी ये जिंदगी नहीं होती है, प्रथम कोटि की जिंदगी। और भारत को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना। क्यों? भारत शक्तिशाली होगा तो धर्म की विजय होगी, तो सत्य की विजय होगी, तो न्याय की विजय होगी। भारत शक्तिशाली होगा तो पूरी दुनिया में समृद्धि होगी। भारत शक्तिशाली होगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसलिए योगी श्री अरविंद ने कहा कि भारत के उदय में ही विश्व का उदय है। और यह युग निर्माण का काम जिसका स्वप्न देखा था हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने, महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद ने, और युग निर्माण की संकल्पना को लेकर के पूरी विश्व में एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। वर्तमान युग में वेद मूर्ति, तपो मूर्ति पंडित श्याम शर्मा ने, वो युग निर्माण का काम भी अब होगा। सब महापुरुषों के स्वप्न साकार होंगे। ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। अरे आज
जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं वो बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। माना कि ऐसे में भी आसुरी शक्तियां कष्ट तो देती ही हैं, वो तो अपना काम करेंगे। लोग बोलते बाबा जी वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कैसे होगा? अरे मैंने कहा वो तो ऐसा वैसा करेंगे ही, हमको क्या करना, हमको सोचना। स्वामी विवेकानंद जी के पास में सैन्य बल नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास में राजबल नहीं था, स्वामी विवेकानंद के पास में धन बल नहीं था। सैन्य सत्ता, राज सत्ता और धन सत्ता से नहीं, उन्होंने तो सत्य धर्म की सत्ता के बल पर, ईश्वरीय सत्ता के बल पर पूरी दुनिया को एक नव जागरण का संदेश दिया। और प्रतिकूलताएं तो चलती रहती है। अपने महापुरुषों ने कितने कष्ट झेले हैं। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को उनके आंखों के सामने दीवारों में छीन दिया जाता है, गुरुओं के शीश कत्ल कर दिए जाते हैं। आदि शंकराचार्य को 31 वर्ष की उम्र में जहर देकर के मार डाल दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में 31 बीमारियों से पीड़ित होकर के तड़पते तड़पते दम तोड़ देते, कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। स्वामी दयानंद को 17 बार जहर दे दिया जाता, 18वीं बार तो संख्या और क्या आर्सेनिक दे दिया जाता है। सुकरात को विष पिला दिया जाता है। कितने कष्ट सहे अपने महापुरुषों ने, उनके नाखून के बराबर भी हम कष्ट नहीं सह रहे। मेरे से कहा बाबा आचार्य बालकृष्ण को जेल में डाल दिया, ईडी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बाबा के नाम 1 रुपए नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। और अब तो मैं कहूंगा 2 कपड़े से ज्यादा कपड़े भी नहीं, 2-3 जोड़ी लेके आया था, वो भी एयरवेज की उसमें फ्लाइट में घूम रहे हैं। हमने कहा 2 कपड़े ही जिंदाबाद। हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है? आप लोग सुबह से शाम तक हिसाब किताब लगाते रहते हो, लगाते रहे, कितनी रिक्वायरमेंट है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, और इनकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में इनको भी उतार के अभी योगा भी सिखा के जाऊंगा। वैसे तो जो हमारे जैन मुनि रहते हैं ना, दिगंबरी रहने का बड़ा मजा है। रात को हम वैसे ही रहते हैं, दिन में आप लोगों के लिए पहन लेते हैं। धैर्यम् यास्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। ऐसा जीवन जियो। कैसा जीवन? धैर्यम यस्य पिता, धैर्य आपका पिता, क्षमा मां, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिमी। हमारा ये कुटुंबी है, आप भी ऐसे बनाना, बात लाइफ को एंजॉय करोगे। हाँ, लाइफ में वाइफ से एंजॉय नहीं होता है। हम बिना वाइफ के हैं, देखो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? ये वाइफ और हस्बैंड तो बैंड बजाने के लिए होते हैं। लाइफ से वाइफ से लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती। यह है लाइफ का एंजॉय करना। कैसे? धैर्यम यस्य, धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी मां, शांति जिसकी पत्नी, सत्य मित्र, दया बहन, मन का संयम भाई, शैया भूमि तलम, जमीन पर सोना। हम तो जमीन पर सोते हैं, यहां देश विदेश में कहीं भी हो अपनी चादर बिछा के सो जाते हैं, क्या दिक्कत है? शैया भूमि तलम दिशोपि वस्त्रम, दिशाएं हमारे वस्त्र हैं दिगंबर। शैया भूमि तलम दिशोपि वस्त्रम ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान का अमृत पी के तृप्त रहो। सारा दुख तो इग्नोरेंस से, अज्ञान से है। कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी? तन ढकने के लिए 2 कपड़े। जिंदगी में इसको याद रखना आज। ये धर्म का एक सूत्र है, अपरिग्रह। क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? मेरे से पूछा लोगों ने, बाबा जी आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने सोचा क्या इसके बिना जी सकते? तो जी रहे। अन्न नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? उसके बिना जी सकते।
कोई लग्जरी नहीं। देखो कोई हाथ में अंगूठी है और यहां इसमें भी किसी ने तो एक एक में दो दो, एक शनि की, एक केतु की, एक राहु की, एक वाइफ की, फिर पता नहीं भूत की, भूतनी की, इसकी उसकी। हाँ अच्छा बताओ, धरती पर तुम चढ़े हो या धरती तुम पर चढ़ी हुई है? आदमी मंगल पर गया, मंगल आदमी पे चढ़ता है। उल्टा चढ़ा रखा है सब। और कौन चढ़ता है ये ज्योतिषी बताता है और वही उतार देता है। अरे मेरे ऊपर क्या चढ़ा है मुझे पता होना चाहिए, ज्योतिषी को क्या पता? ज्योतिषी तुम्हारे घर में उसकी जूती छिपा करके पूछ के बता दो, कोई भी बाई का लाल बता दे कि उसके जूते कहां छपाए हुए। अरे 10 फीट दूर का तुम बता नहीं सकते, लाखों किलोमीटर दूर का शनि आदमी पे चढ़ा देते हो। और हम भी इतने बेवकूफ हैं कि मान लेते मेरे ऊपर शनि चढ़ गया, तेरी 5 फीट की हाइट नहीं, शनि चढ़ जाएगा, चटनी बन जाएगी तेरी। शनि चढ़ गया, केतु चढ़ गया, राहु चढ़ गया, भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, बिना मतलब। भूत किसको कहते हैं? सर्वभूत हिते रहता, भूत कहते हैं प्राणी को। और दूसरी है ये भूत नहीं कह दो अंग्रेजी। कोई किसी आदमी में अज्ञान, इससे असुरक्षा, कई तरह का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान नहीं, आहार का ज्ञान नहीं, संबंधों का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान नहीं, ज्ञान योग ज्ञान होना चाहिए। कर्म योग, कर्म का बोध होना चाहिए। राजयोग, आत्मा का बोध होना चाहिए। स्वधर्म राष्ट्र धर्म का बोध होना चाहिए। ये सब योग है, ज्ञान ही योग है। अज्ञान के कारण से ही भोग है। भाई बहनों, मैं बात कर रहा था भारत के बारे में, तो चिंता मत करना, उसको हम संभाल लेंगे। आप लोग सपोर्ट करना थोड़ी। मैंने कहा ना वहां, उसमें एक बरिश बोले बाबा कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? मैंने कहा ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। बोले मैंने फिर भी बताओ ना थोड़ा। मैंने कहा उसका फ्यूचर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, वो चिंता का प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अब ये प्रश्न बचा ही नहीं। अब तो हिंदुस्तान को हमें फिर से उसके वास्तविक स्वरूप में, कहां रोम और मिस्र, यमन प्रांत, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के वर्मा देश, बांग्लादेश और इधर त्रिविष्टु तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, इतना विराट भारत, विश्व विजेता भारत, अखंड भारत। और सिमटते सिमटते खंड खंड होते कहां आ गया। आज ही मेरे पास फोन आया, वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते, क्या नाम, मधु भंडारकर। मधु भंडारकर, मैंने उसको अभी आने से पहले एयरपोर्ट पे मिला था। अभी फोन आया, बाबा आप तो पीछे हमारे साथ साथ ही हैं, अब तो करना पड़ेगा कुछ। मैंने कहा हाँ। मैंने उसको सजेशन दिया, एक विश्व विजेता भारत, ये सीरियल और पिक्चर बनाओ, देश के लोगों में आत्मगौरव जगह। अच्छा, क्या सास बहू दामाद का सीरियल तो हिंदुस्तान में सब जगह ही चल रहा है, टीवी में भी चल रहा है, राजनीति में भी चल रहा है। सास बहू दामाद सब घोटाले में लगे हुए हैं। सब घोटाले, ABCD घोटालों के नाम से पढ़ाई जाएगी थोड़े दिनों में। हाँ, ए माने आदर्श सोसाइटी, बी माने बोफोर्स, सी माने कॉमनवेल्थ, कॉलगेट, डी माने दामाद घोटाला बहुत बड़ा है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हजारों लाखों करोड़ का मालिक बना दिया। उस दामाद को किसी और पर एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाता। हम ब्रिटेन में आते हैं तो हमारे साथ में रेड अलर्ट। वो यूनिवर्सल दामाद क्या है भाई? वो क्या है? वो कुछ नहीं। क्या कंट्रीब्यूशन है उसका? हमको रोक दिया। हमने पूछा रेड अलर्ट क्या होता है?
बोले बाबा जी रेड अलर्ट आपको पता नहीं? मैंने कहा हमको तो इतना पता, हम तो पूरे रेड है। बोले रेड अलर्ट का मतलब होता है आतंकवादी और अपराधी, टेररिस्ट एंड हार्ड क्रिमिनल। अरे मैंने कहा ये कहां से आ गया? तो हमने फोन घुमाया इधर उधर, सब लगाया, कई एमपी को लगा दिया, वो एमपी वहीं आ गया इमिग्रेशन पर फिर हमारे साथ, और हमसे 8 घंटे में एक प्रश्न नहीं पूछा। बोले प्रणाम। मैंने कहा नमस्ते, चल दिए। मैंने कहा अब तो जाकर के वही देखेंगे, हिसाब किताब वही पूरा करेंगे। मोदी को वीजा न देने के पीछे कारण क्या है? कि मोदी अपराधी है इसलिए अमेरिका वीजा नहीं दे रहा है। अरे थोड़े दिन रुक जाओ, अमेरिका घर जाकर के मोदी को वीजा देकर के आएगा। ये तो साहब अब बोलते भी हैं, अब इधर ओबामा के लोग भी बोलते, बोले क्या करें सरदार जी से कुछ काम निकालने हैं ना, सीधा बोलते। बोले हमको पता है मोदी बहुत पावरफुल आदमी है और वही भारत का भविष्य है। अरे मैंने कहा भारत का ही नहीं, थोड़े दिन इस काम को चलने दीजिए, भारत विश्व का भविष्य तय करेगा। और हम तो सबसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने कहा भारत यदि ताकतवर नहीं होगा तो दुनिया में सत्य का, न्याय का, इंसानियत का गला घुटता रहेगा। हो क्या रहा है? पूरी दुनिया में संसाधनों को लेकर के उसके ऊपर एकाधिकार जमाने के लिए वार, जंग छिड़ी हुई है। कौन रोकेगा इसको? और आज भी ये जंग जारी है। भारत कहता है तेन त्यक्ते न भुंजी था, हमें समृद्धि चाहिए लेकिन हिंसा के साथ नहीं, अहिंसात्मक समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी विद नॉन वायलेंस, इनजस्टिसफुल प्रॉस्पेरिटी, अन्यायपूर्ण समृद्धि, अन्यायपूर्ण स्वामित्व, अन्यायपूर्ण उपभोग। ये बड़े शब्द हैं, मेरी अंग्रेजी पुअर है जरा, लेकिन आप सुनना जरा। अन्यायपूर्ण उपभोग, ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है। सिया राम में सब जग जानी, वासुदेवाः सर्वमीशावास्यमदम सर्वम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमशिषेत कि तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है, मैं स्वयं ब्रह्म रूप हूं। आज ये दीक्षा लेके जानिए आपको, यही राजयोग है, यही विवेकानंद की वेदांत का संदेश। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का मूर्त रूप है, हर नर में नारायण का वास है। फिर इस धरती का उपयोग मां की तरह करना, मां का दूध पीने का तो हमें अधिकार है, लेकिन मां का खून पीने का हमको अधिकार नहीं है। यही है हमारी संस्कृति। जिस तरह से अमेरिका जी रहा है उसे जीने के लिए 5-7 धरती चाहिए, तो यह उपभोग की भूख पूरी हो पाएगी। इसलिए अमेरिका ने पहले से ही चंद्रमा के ऊपर अधिकार कर लिया कि वहां भी कुछ मिलेगा तो पहले मैं लूंगा। मंगल में मंगल ढूंढने नहीं गए, ये मंगल पे मंगल ढूंढते हैं, हम तो जीवन में मंगल ढूंढते हैं। मंगल पर रिसोर्सेज क्या है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उनको बांट लिया, ये इतना मेरा, ये इतना मेरा। भारत को भी छोटी सी पट्टी दे रखी, बोले बाकी सब हमारा। किसके लिए? संसाधनों के ऊपर एकाधिकार जमाने के लिए वार छिड़ी हुई है। अन्यायपूर्ण उपभोग, अन्यायपूर्ण वितरण, इनजस्टिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन और अन्यायपूर्ण भागीदारी। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, UNO, सना, इनमें भारत की वोटिंग बहुत थोड़ी सी है और वीटो पावर सब, ये इसको कहते हैं अनडेमोक्रेटिक तरीके से वर्ल्ड को डोमिनेट करना। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? अरे 5 साल, अरे जब ज्यूइश लोग पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स को
ऐसे अंगुलियों के इशारे पर नचा सकते हैं, तो 5-7 कांग्रेसमैन भेज दो या हाउस के अंदर, और भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाने के लिए आप ही लोगों को काम करना है। क्यों नहीं हो सकता? और बहुत कुछ होना है, यो बहुत कुछ होना है अभी तो। लेकिन अगली बात है, बहुत बड़े बड़े इश्यू हैं, किस किस पर बोलूं, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की उत्सुकता बड़ी जोरदार है, चेहरों पर चमक है, बिना क्रीम पाउडर लगा के भी कपाल भाती करता है लगता है। हाँ, कपाल भाती करो ना तो कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर, वहां रोज इंडिया में ऐड चलती है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। एक आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर दे रगड़ा है, धी रगड़ा है, 5 साल तक रगा नहीं, 1 इंच भी वो गोरी ना हुई। तो मैंने बोला, छोरी तू क्यों परेशान हो रही है, अपना कपाल भाती कर, फेयरनेस भीतर से आएगी। यह है योग, यह है वेदांत का दर्शन। सुख तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे भीतर है, भगवान तुम्हारे भीतर है, सारा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। यह है भारत का संदेश। मैं कह रहा था, भारत का उदय क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के उदय होने से, भारत के ताकतवर होने से पूरी दुनिया में मानव धर्म, न्याय धर्म, मानवता, मानववाद, मानवतावाद, न्यायवाद, अध्यात्मवाद जिंदा रहेगा। हो क्या रहा है अब? उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद के नारे लग रहे हैं, और धर्मांतरण की हो। अभी विवेकानंद जी का एक बच्चों ने कितना अच्छा प्ले किया था रोल, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ। तुम लोगों को धर्म नहीं आता है, हम तुमको धर्म की दीक्षा देंगे। उनको धर्म की डेफिनेशन भी नहीं पता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत का उदय क्यों जरूरी? भारत ताकतवर होगा तब पूरी दुनिया में राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी। धर्म जो यूनिवर्सल लॉज और ट्रुथ पर आधारित है, वो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित होगा। अभी क्या हो रहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मैं अमेरिका की धरती पर भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का, धर्म का संदेश देने आया हूं, मैं धर्मांतरण करने नहीं आया हूं। और अपने यूरोप के भाइयों से भी, अमेरिका के भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, यह धर्मांतरण करना बंद करो। अरे एक ईसाई को अच्छा ईसाई बनाओ, एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाओ, एक हिंदू को बेहतर हिंदू बनाओ, यह तो समझ में आती है। लेकिन यह क्या हुआ कि हम तुमको ईसाई बनाएंगे, हम तुमको मुसलमान बनाएंगे, तुम दूसरे धर्मों का आदर नहीं करना जानते। यह बहुत बड़ी समस्या है। पूरी दुनिया को हम एक धार्मिक उन्माद की ओर धकेल रहे हैं। ये रिलीजियस वॉर चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और ऐसे षड्यंत्र करने वालों को भारत रत्न दिया जाता है। धर्मांतरण का षड्यंत्र करने वालों को भारत में भारत रत्न दिया जाता है, और धर्म के काम करने वालों को मारने के लिए साजिशें की जाती है। यह सारा पाप खत्म होगा, हिंदुस्तान का उदय होगा। बात होनी, बहुत तरह के षड्यंत्र। अब वापस धर्म पर आता हूं। अब धर्म क्या है देखो, मेरे साथ बोलेंगे सब। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनाः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये शिक्षा देना। धर्म क्या है? जो अपने को अप्रिय लगे वो दूसरों के लिए मत करना, बस यही धर्म का मर्म है। अब धर्म की मैं 10-12 डेफिनेशन दे रहा हूं, जिसकी जैसी चित्त भूमि हो समझ लेना। जो अपने को अप्रिय लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, वो दूसरों के लिए मत करना। आपका कोई सम्मान करता है तो आपको प्रिय लगता है, तो दूसरों का आदर करना उस धर्म है। दूसरों को सुख पहुंचाना ये धर्म है। दूसरों की सेवा करना ये धर्म है। झूठ बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि खराब?
बोलो। तो सत्य बोलना धर्म है। आपको कोई काटे तो अच्छा लगता है कि बुरा? तो अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है। सत्य बोलना धर्म है, असत्य अधर्म है। आपकी मां बहन बेटी आपके साथ कोई दुराचार व्यभिचार करे तो अच्छा लगता है? नहीं, यह अधर्म है। ब्रह्मचर्य धर्म है। आपकी कोई चोरी कर ले तो अच्छा लगता? नहीं लगता, अधर्म है। चोरी न करना धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, शुचिता में जीना, संतोष, तप, जीवन में संघर्ष करना, स्वाध्याय, आत्म केंद्र से जुड़े रहना, ईश्वर प्रणिधान। अब धर्म की अगली डेफिनेशन, जो आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा उठती है। अपने बच्चों को धर्म की टीचिंग, धर्म का एजुकेशन, धर्म की डेफिनेशन अपने बच्चों को समझाना। जो आत्मा में उस परमात्मा की आवाज उठती है। पूज्य श्रद्धेय सुगुणेन्द्र तीर्थ जी महाराज जी कह रहे थे ना यहां से, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। आत्मा में उस परमात्मा की हमेशा एक आवाज उठती है, वो गलत काम करने से हमको रोकती है। तो सारी दुनिया की दौलत मिले और आत्मा रोके तो कदम आगे नहीं बढ़ाना। और सारी दुनिया की विपत्ति आए, सारी दुनिया की संपत्ति मिले और आत्मा में परमात्मा की पुकार उठे कि मत करो इस काम को, तो उस तरफ पग मत धरना, वो अधर्म है। और सारी दुनिया की विपत्ति हो सामने और अंदर से आवाज आए करो, ये शुभ है तो करना, ये धर्म है। आत्मा की पुकार, इसी को बोलते हैं आत्मधर्म। क्या बोलते हैं इसको? आत्मधर्म, आत्मज्ञान, आत्म प्रेरणा, यही धर्म है सबसे बड़ा धर्म का मार्ग। बाकी कितनी ही परिभाषाएं। धर्म यूनिवर्सल लॉज, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है ना, रिलीजन का अर्थ है वह पंथ, संप्रदाय, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई एक परंपरा। पूरे भारत में बहुत बड़ा पाप चल रहा है, धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलर शब्द का भी वो सही मीनिंग नहीं है, रिलीजन का भी सही मीनिंग नहीं बताया गया। और ऑफिशियल उसका ट्रांसलेशन सेक्युलरिज्म का इंदिरा गांधी के समय संसद में क्या किया गया? ऑफिशियल ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्षता। संसद में क्या लिखा है? संसद में जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, स्पीकर बैठता है, वहां क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये संसद धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट का टैगलाइन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सब बोलेंगे क्या है ये? धर्म चक्र प्रवर्तनाय तो संसद में। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का है यतो धर्मस्, महाभारत का ये सूक्ति है, श्लोक है, यतो धर्मस् बोलो ततो जयः। और सारे सरकारी जितने भी कागजात हैं सब में क्या लिखा रहता है? सत्यमेव। तो फिर अभी चल क्या रहा है? बोले हमको धर्म नहीं चाहिए। मैंने कहा धर्म चाहिए तुमको? तो धर्म यूनिवर्सल लॉज, ये पूरा वर्ल्ड वाइज एक स्टैब्लिश सत्य है। यूनिवर्सल लॉज एंड ट्रूथ, दिस इज कॉल्ड धर्म। एंड व्हाट इज द रिलीजन? रिलीजन तो कोई भी, अब जैसे हमने योग की परंपरा शुरू कर दी तो हमको भी थोड़े ही दिनों में हो सकता है लोग कहेंगे कि बाबा जी भी एक धर्मावतार हुए। ये धर्मावतार नहीं है मेरे भाई, धर्म तो शाश्वत है। इसीलिए भाई बहनों, अब वापस में धर्म की बात इतनी सी कह करके कि धर्म तो जीवन के शाश्वत मूल्य है। जो भी सच्चाई है वो धर्म है और झूठ है वो अधर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यही पाप पुण्य धर्म धर्म है, शुभ शुभ है। अच्छा सुनो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। कंपैरेटिवली इसको नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये धर्म की ये डेफिनेशन अपनी यही है। और उसमें हम कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वो अनंत गुना होकर के उसके अनुसार तुम्हें कर्म का फल मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, ये सब होगा। और उसी के अनुसार तुम्हारे अगला जीवन तय होगा। लेकिन दूसरे रिलीजन्स में क्या है? बोले तुम उस रिलीजन में दीक्षित हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए हेवन एंड जन्नत का द्वार खुला हुआ है। हमारा धर्म जो है वो रिचुअल्स पर हमारा नहीं टिका हुआ, वो तो हमारे प्रतीक हैं।
हमारा धर्म सत्य पर टिका हुआ, तप पर टिका हुआ है। यह है धर्म, और इस धर्म को आप लोग जी रहे हैं, जिए। अब जल का धर्म क्या है? जल का धर्म वाटर का शीतलता, अग्नि का धर्म उष्णता, सूर्य का धर्म ऊर्जा देना, धरती का धर्म सबको आश्रय देना, सब धर्म है। अन्न का धर्म शक्ति देना, जल का दूसरा धर्म प्यास बुझाना, ये सब धर्म है। जो उसका रियल उसकी आइडेंटिटी है वो उसका धर्म है। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं धर्मांतरण के लिए नहीं आया हूं, मैं तो धर्म का उपदेश देने के लिए आया हूं, शुभ का आधान करने के लिए आया हूं। चक्र बंद होना चाहिए, तभी सब बातें संभव होंगी जब हम शक्तिशाली बनेंगे। अगली बात योग की। योग क्या है? अब योग के बिना तो जिंदगी है ही नहीं। आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए? ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ चाहिए, लेकिन सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। और कब होगा? दो चीजें, एक अच्छा तन, दूसरा अच्छा मन, बुद्धि, ज्ञान। दो चीजें बस। चलो, दो ही बातें कह करके अब अपनी बात को पूरा करूंगा। और आज का ये सेलिब्रेशन योग के साथ इसलिए खत्म करेंगे कि कल से आप फिर योग करेंगे। बोलो, आप करें तो मैं बताऊं। करेंगे? करते हैं? कितने करते हैं? ओ बोलो, योग धर्म की। ओ, ये तो बहुत जरूरी, बढ़िया बात। आप में से करते हैं, और कितनों ने करके फायदा उठाया है? ओ, ये तो बहुत जोरदार काम है। कितनों ने वजन घटाया है? बहुत हाथ उठ रहे हैं। कितना घटाया है? 10 पाउंड 20 पाउंड तक कोई गिनती नहीं है। 25? एक किसने है? ये तो 25 पाउंड घटा के बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हम 20 से तो नीचे गिनते ही नहीं, क्योंकि तो करोड़ों किलो कम हो चुका है। ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? बड़ी बात है। हा? क्या ठीक किया? ब्लड प्रेशर एंड शुगर, नो रिक्वायर्ड मेडिकेशन फॉर ब्लड प्रेशर। देखो, ये है योग का फायदा। सुन लो, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक भी रोगी ऐसा नहीं है जो दवाई खाने से क्योर हुआ हो। एक भी सिंगल पर्सन, देयर इज नो सिंगल पर्सन कि उसने अपना ब्लड प्रेशर क्योर कर लिया हो। और योग करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी बीमारी क्योर ना हुई हो। यह है योग का बल। ये तो व्याधि की दृष्टि से कहा। और योग से अच्छी तंदुरुस्ती, ऐसी अच्छी तंदुरुस्ती कैसी होती है? उभरा हुआ सीना, मजबूत भुजाएं, कसा हुआ पेट, ऐसे। और कसी हुई कमर। यहां क्या हो रखा है? इधर से कमर यूं निकली हुई, फिर आगे पेट डाइनिंग टेबल बना हुआ है, और कुल्ले ऐसे मोटे मोटे हो गए हैं, 20-20 किलो के साथ लेके चलते हैं। हाय राम, शरीर धर्म भी ठीक रखो। भगवान ने आदमी बनाया, अगले जन्म में हाथी बना के भेजेंगे साथी, कि इसको आदमी की तरह तो जीना ही नहीं आया। तो शरीर कैसा होना चाहिए? फूल की पंखड़ियों की तरह। देह देवालय शिवालय है, तन में मन शिव संकल्प मस्त। और मन में भी। तो दो चीजें आपकी ठीक हैं तो आपको सदा सुख रहेगा। एक, शरीर एकदम ठीक, न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न घुटने में दर्द, न कमर में दर्द, न सिर में दर्द, कोई दर्द नहीं। फिर दूसरा, मन में ज्ञान का प्रकाश, तो वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में कभी भी दुख होएगा ही नहीं। सारा दुख किससे है बोलो? अज्ञान से, इग्नोरेंस से। फिर क्या? व्यवहार नहीं जानते, व्यापार नहीं जानते, संबंधों को नहीं जानते, फिर आपस में गुत्थम गुत्था। हस्बैंड के बैंड बजा रही है पत्नी, बीवी ने हस्बैंड का बीपी बढ़ा दिया है, एक दूसरे के पीछे ऐसे पिले हुए हैं, पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं। तो सुनो, सुबह उठ करके क्या करना? योग। क्या करना? योग में सूर्य नमस्कार आता है, संघ में भी सिखाया जाता है ना। हमारे वेद जी बड़े अच्छे। कितनी उम्र हो गई वेद जी? वेद जी
चार वेद तुम्हारे भीतर है, वेद भी बाहर नहीं, ज्ञान भी बाहर नहीं, सब भीतर है। ये योग का सिद्धांत है। तो सुबह उठ के क्या किया करो, कम से कम 10-11 बार से लेकर के 50 बार सूर्य नमस्कार किया करो। कितना बोला? 50 बार करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट में 5 बार। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, पहले धीरे करूंगा। दिस इज ये तो स्लो मूवमेंट में किया। थोड़ा थोड़ा फास्ट करता हूं। 1 मिनट में 5 बार, तो 50 बार में 12 मिनट, 10-12 मिनट में पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास। 100 साल तक जवान रहना, कोई बुढ़ा नहीं होगा, सबको जवान रहना। जीवेम शरदः सतम। कैसे? आप भी करोगे ना? कितनी बार करना? कल से 5 बार शुरू कर देना, ठीक है? फिर 10 बार। परिणाम तो अच्छा नहीं चाहते, काम अच्छा नहीं करना चाहते, सोच चाहे जिंदगी अच्छी जीना चाहते रहे, सुबह 1 घंटा मेहनत कर लो। पैसा कमाने में कितनी देर मेहनत करते हो? बोले बाबा गिनती ही नहीं। 18 घंटा काम करते हो, 1 घंटा काम अपनी तंदुरुस्ती के लिए। तो एक तो ये सूर्य नमस्कार है। दूसरा, जो जवान है ना, वो तो शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन बहुत इजी है। शीर्षासन खुद भी कराना और बेईमानों को भी कराना, बहुत जरूरी है। और जो जवान है वो तो वृक्षासन भी कर सकते, बड़ा इजी है। आप भी करेंगे ना? बोले बाबा सीधा तो चलना नहीं आता, उल्टा सिखा रहा। ये तो जवानों के लिए बोला है। लेडीज तो सब कामों में आगे है, अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? सुनो, सुबह सुबह 8 प्राणायाम तो सबको करना चाहिए। आता है ना ब्रीदिंग? क्योंकि यहां स्टेज नहीं, अब मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए खड़े होके कर रहा हूं। नहीं तो कल तुम सोचो कि बाबा को स्टैंडिंग योगा सिखा के गए हैं। फिर दूसरा, कपालभाति। आता है ना सब? बहुत जबरदस्त है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिलती है इससे। liver, spleen, intestine, pancreas. 1 second, 1 stalk. This is the safe practice of Kapalabhati Pranayam. ये इंजन है, ये ड्राइवर है। इंजन ठीक रहेगा तो गाड़ी टनाटन चलेगी,
और ड्राइवर ठीक रहेगा तो ठीक जगह लेके जाएगा, नहीं तो सांझ होते होते हिंदुस्तान में ठेके पर और यहां पर पब में पहुंच जाएंगे। ये ठीक होना जरूरी है। दो ये, एक तो ये और एक ये ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ियां चंद्रसर सूर्येश्वर, और इनके साथ में कोरिलेटेड है पूरा तंत्र। योग से, प्राणायाम से एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेके पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। सभी केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, सब कुछ बैलेंस किसके द्वारा? 5 मिनट ये भस्त्री का, 10-15 मिनट कपाल भाती, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, कान बंद करके, मुंह बंद करके, नाक से ऐसे छोड़ते, फिर ओम। ये 5 तो सबको करने चाहिए कम से कम, मिनिमम। फिर जो थोड़े ठीक है ना, पेट ठीक ठाक हो जाए तो बाह्य प्राणायाम। हो गया, आपने भी किया ना। फिर बाद में तो ये भी कर सकते। छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। फिर बाद में ऐसे भी कर सकते हो। आप भी करोगे ना? एक गुजराती मारा પાસે આવ્યા, બોલે આમાં શું સમજ હું કરી શકું? પછી લાડવા ખાઈને ઢોકલા ખાઈને આવ્યો હતો અને પછી આગળથી ઘુમાવા લાગ્યો તો આગળથી તો નીકળ્યું નહીં, તમારો બટો આમ મરાવે પછી આખું શરીર હળવું હોવું જોઈએ ને। તો ઢોકલા થેપલા ખાઈ ખાઈને, લાડવા ખાઈ ખાઈને લાડવા જેવા ગોળ ગોળ થઈ ગયા। આ કપાલભાતિ કરજો અને સવારે ઉઠીને ગરમ પાણી, હા એ બહુ જરૂરી છે। હા સાંભળો, પછી ગળા માટે ઉજ્જય બહુ સરસ છે। પછી આમ તો ઘણા બધા આસનો છે અને છોકરાઓને સર્વાંગાસન, હલાસન, ચક્રાસન એ પણ કરાવજો। અને જે જવાન જવાન છે ને, એ મારી જેમ છે ને, 10 मिनट फक्त, कितनी बार? फक्त 10 मिनट। तो 10 मिनट वाला 2 मिनट में करके बताता हूं, ठीक है? देखोगे? लेकिन देखने की फीस लगेगी। क्या फीस लगेगी? कल से मेरे फेसबुक अकाउंट पे जुड़ जाना, वैसे अकाउंट तो है नहीं। स्वामी रामदेव के नाम से आप सर्च करेंगे तो फेसबुक और ट्विटर मिल जाएगा। हम रोज जुड़े रहेंगे तो ही तो एक दूसरे के साथ जुड़ करके साथ संगतध्वम संवदध्वम संघे शक्ति ही करोगे, सबको साथ में मिल करके। और आस्था पर देखते हो ना योग, हाँ 719 यहाँ डिश चैनल के ऊपर ये नंबर देखते हो। जो नहीं देखते हो कल से कनेक्शन लेना, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा तुम्हारा गॉड के साथ। योग, हाँ सुनो, तो सुबह सुबह क्या करना? सुबह सुबह जो जवान जवान है ना, वो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, भारतीय व्यायाम करना, उसको बोलते हैं दंड बैठक। क्या बोलते हैं? देखो मैं दंड बैठक करके बता रहा हूं। अब पीछे वालों को तो दिखाई नहीं देगा, ये है क्या स्क्रीन? चलो कोई नहीं, छोड़ो। अभी एक तो ये 12 दंड ऐसे कर, ऐसे, फिर ये दूसरा ऐसे, फिर ये तीसरा ऐसे, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, ये, फिर ये, फिर ये,
ये तो मैंने थोड़ा सा करके बताया। कितनी बार? 100 बार। आप 2-2 बार कर लेना। फिर ये 8 बार, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, और फिर ये छठा। हाँ, आओ करना। ये बच्चे कर रहे हैं। और लास्ट ऐसे करना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल योग बताया। इतना व्यायाम करने के बाद श्वास नहीं भूलनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा व्यायाम करो, ऐसे नहीं। योग के 2 पक्ष हैं। एक उसका आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष। दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष, क्रियात्मक योग। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब पूरा विश्व भारत के उस महामानव, महानायक, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के सार्ध शताब्दी महोत्सव को मना रहा है पूरी दुनिया में, तो आप शिकागो वाले भी उसमें अग्रणी भूमिका में हैं। आप सबको एक बार मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक समारोह में जिन्होंने हम सबको आकर के कृतार्थ किया है, इससे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी महाराज, जो उडुपी से इतने सुदूर दक्षिण से हमारे बीच में आए। एक बार पूज्य स्वामी जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे आदरणीय श्री वेदानंदा जी ने, जिन्होंने एक बहुत सुंदर फाउंडेशन डाली यहां HSS की, और आज वो हिंदू स्वयंसेवक संघ, उसने सेवा का एक बड़ा कीर्तिमान बनाया है। आदरणीय श्री वेदानंद जी के तप के लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी स्वयंसेवक जो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं इस अभियान के लिए, एक सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली विश्व के निर्माण के लिए, शांतिमय विश्व के निर्माण के लिए, ऐसे सभी वॉलंटियर्स का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। उन बच्चों का जिन्होंने यहां सुंदर प्रस्तुतियां दी, और आदरणीय श्री भीष्म जी, ब्रह्म जी, जो अपने इस भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ जिन्होंने किया है, भाई शेखर अग्रवाल जी, रमेश गोयनका जी, और मैं एक एक स्वयंसेवक का नाम नहीं लूंगा, और यहाँ ये येलो जी और हाल के ऑनर हमारे माइकल मरीनो जी, इन सब का भी एक बार बहुत बहुत सबकी ओर से। बोले भारत माता की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की प्रणाम।